Hello everyone, a very warm welcome to all of you. Welcome to your today's session of current affairs. Can you guys please tell me in the comment box, chat box, whether I'm audible or not? Okay, cool. So today we are going to discuss a very important topic. It was in news because of Russia, and there was a UN meeting. There was a UN conference which happened, and Russia has intervened in it somewhere. Thank you, Shreyans. So Russia has intervened, Russia has done something, and because of that, the whole idea of the consensus that was bound to happen was scrapped. Everyone has been criticizing Russia's this move, right? So today we are going to discuss one of the very important topics of your international relations, also international security, which is NPT, that is your non-proliferation treaty. ठीक है, how it came into existence, what is vertical versus horizontal proliferation, we are going to discuss everything. Thank you, Saurav. Okay, so let's start. Now, is question, the whole topic is based, I'm going to give you a question for your Seize the Mains. You can write your answer and submit, post it on our website. Now, website pe aap post karoge, from there, the link for the website, you can find it in the comment box below, right? Description box below. Also, from there, your answers will be evaluated by our experts of team. And that will be totally free of cost, right? So your question for today is, it is time to abandon your NPT, nuclear non-proliferation treaty, as it is beginning to look shaky. Okay, you have to comment on it and answer in 150 words. See, आंसर आपका लिखेंगे, I'll provide you with a couple of details and then you'll have to form your own answer. Also आपको ना ये बेसिक जो टर्म्स होती हैं इनका डिफरेंस पता होना चाहिए. What is meant by critically examine, what is meant by examine, what is meant by elucidate, what is meant by comment, what is meant by explain. ठीक है, हर एक सेपरेट वर्ड की सेपरेट रिक्वायरमेंट होती है. सो यू शुड बी नोइंग इन डिटेल अबाउट इट, व्हाट इज बीइंग आस्क्ड, एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू आंसर. यूजुअली व्हाट वी डू इज, हमें जितना पता होता है वी वॉमिट एवरीथिंग इन द आंसर शीट. दैट इज नॉट हाउ इट इज सपोज टू बी. You should be very confident about what you are writing in your paper, and you have to write precisely pinpointed papers. हमारी पीछे की स्कूलिंग की एक्चुअली आदत ही होती है, we write everything that we know about a topic, and that sometimes backfires and आपके मार्क्स ना कट जाते हैं. ठीक है, even if the teacher wants to give you, evaluator wants to give you the marks, तो वो कभी कई बार backfire कर जाता है. Right, now let's get started. Non-proliferation treaty ये न्यूज में क्यों था? as there was a very good article in Hindu about it. Now there was a conference, as I told you, that happened in New York of United Nations, and इसका एक consensus document sign होना था, which was supposed to be a cornerstone deciding document about the whole nuclear arsenal of the world, but it could not be reached, and उसके लिए हम रशिया को blame कर रहे हैं. Why are we blaming Russia? Because Russia Ukraine जो conflict चल रहा है, as we all know, a lot of things have happened पिछले कुछ महीनों में, and उसकी वजह से there is a particular न्यूक्लियर पावर प्लांट, मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ पे सिचुएटेड है. सो राइट नाउ दैट इज बीइंग कैप्चर्ड बाय जो आपका रशियंस हैं. ठीक है, रशियंस थे एनेक्स्ड क्रेमिया का पार्ट इन 2014. उसके बाद से जो यूक्रेन का ये वाला न्यूक्लियर पावर प्लांट है, दे हैव बीन कैप्चरिंग दैट, एंड कॉन्टिन्यूस बॉम्बिंग्स की वजह से यूएन इज वेरी मच वरिड अबाउट इट माइट लीड टू serious repercussions in the region altogether, right? So ये वाला है, मैं आपको मैप में दिखाती हूँ. उससे पहले एक बार देख लेते हैं what is NPT. So NPT बेसिकली आप देखो तो it is a international treaty, and international treaty में क्या है, इसका basic objective is we will limit the escalation of nuclear arms race and the technology related to it. ठीक है, also we will promote cooperation in the peaceful use of nuclear energy, and ultimately हमारा गोल क्या है, we will achieve complete nuclear disarmament. NPT आपका और important क्यों हो जाता है? Because the year 2020 marked the 50th anniversary of
coming your NPT coming into force, but important point ये है यहाँ पे India is not a signatory to NPT. India ने कभी NPT साइन नहीं करा है. आपकी 4 important treaties हैं. One is Wassenaar Agreement, one is CWC. I hope you must have studied them in your international relations. नहीं पढ़ा है तो please read about them, right? उसमें से एक आपकी NPT आती है. NPT क्यों important है एक बार देख लेते हैं, right? Now this is the map. ठीक है, ये आपका क्रेमिया है which was annexed by Russia in 2014. Now this is your nuclear power plant यहाँ पे situated है which is known as Zaporizhzhia. ठीक है, I'm sorry if I'm not pronouncing it right. So this is your nuclear power plant and ये यूक्रेन का power plant है, but right now because Russia has annexed Ukraine itself, क्रेमिया के बाद, तो Russian military forces are actually holding this power plant captive and जो enormous bombings हो रही हैं, this is a very recent infographic, ठीक है, August 29, 2022 का है, barely 4 to 5 days पहले का है, ठीक है. So reactors यहाँ पे हैं and the bombings have damaged the buildings severely. ये आपका निप्रो वाला एरिया है. Now problem is जो several nuclear reactors है, continuous bombing से जितनी बिल्डिंग्स हैं उसके आसपास की ये डैमेज होती जा रही हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम वॉर कैजुअलिटीज दैट हैव बीन हैपनिंग, ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है दिस कुड कॉज a humongous disaster in the whole European region put all together, right? It will release a domino effect and UN, IAEA, जितनी भी UN Security Council, everyone is worried about it. जो UN की ये वाली council हुई थी, we were hoping कि एक peaceful यहाँ से resolution निकलेगा, but रशिया ने रोड ब्लॉक डाल दिया है. Now let's see how things are going to proceed. Now if you see about historical background कि NPT आया कहाँ से, now NPT basically if you see it was an initiative of an 18 nation committee. Basically they were working on disarmament. So this whole NPT was proposed, devised, drafted by this 18 member committee and ये थी एक UN sponsored organization which was based in Switzerland. Now what happened was why the need arose. On 6th and 9th of August in 1945, as we all know, US bombed Japan. So Hiroshima and Nagasaki were reduced to ashes and वहाँ पे जो उस time nuclear reaction, chain nuclear reactions हुए, atomic bombings हुई, उसकी वजह से the people even today, their health have been suffering with a lot of issues. ठीक है, now casualties की आप बात छोड़ दो, उसके अलावा भी the whole city, both of the cities they were reduced to dust. Now the problem is US ने जापान को एक external support तो provide कर दिया that we are US and Japan they became allies for life. But problem with US was if this problem continued, the whole world would be sitting on the pile of atomic and nuclear arsenal and किसी की safety को हम guarantee वहाँ से नहीं कर पाएंगे. Tanisha, yes, we'll talk about our paid batches. Kindly contact on the number given below. We'll find it in the description box. Let's focus on the topic right now. Right now, what happened was this nuclear bombing happened, but aftermath में, after effects में, even US got conscious because Cold War का era था. The world was divided into 2 major power blocks. Now, after effects में it was realized that we needed to ensure a safeguard and we wanted a nuclear arms control. ठीक है, this had to come in place. Now 1961 में what happened, UN took a resolution and called for a meeting which will put a stop to your armed race. Ultimately non-proliferation treaty का जो basis है, ठीक है, इनिशियली ये नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के नाम से नहीं फॉर्म हुई थी. देयर वाज अ फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द ट्रीटी दैट वाज फॉर्म्ड एंड अल्टीमेटली इट टुक इनटू द शेप ऑफ एनपीटी लेटर ऑन. नाउ एनपीटी की बात करो तो बेसिकली इट केम इन फोर्स इन 1970. प्रोविजंस जो है ट्रीटी के दे एनविसेज अ रिव्यू ऑफ ऑपरेशन ऑफ द ट्रीटी इन एवरी 5 years. सो एवरी 5 years में मीटिंग हैपन्स एंड वहां से भी एनविसेज कि ऑपरेशन जो है वो कैसे होता है. नाउ 10th रिव्यू कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात करें विच इज शेड्यूल्ड फॉर 2020, इट वाज डिलेड बिकॉज कोविड-19 का जो पैंडेमिक था उसकी वजह से. इट वाज सपोज्ड टू हैपन इन 2020. सी
इंडिया में सेंसस भी वो सपोज टू हैपन, बट अगेन बिकॉज ऑफ पैंडेमिक अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव हैपेंड, तो चीजें पोस्टपोन हुई. ये ट्रीटी का रिव्यू भी होना था, बट अगेन इट गॉट पोस्टपोन बिकॉज ऑफ कोविड. नाउ मेंबर्स अगर आप देखो तो बाय टुडे around about 191 states they have joined the treaty, and there are five states who still hold nuclear arsenal, जिसको हम P5 बोलते हैं. ठीक है, देर आर 5 मेजर वर्ल्ड पावर्स एंड देर आर 5 स्टेट्स जिन्होंने आज तक एनपीटी साइन नहीं करी है. क्यों नहीं करी है, क्या रीजंस है, लेट्स सी. ठीक है, नाउ एनपीटी अगर आप देखो, एनपीटी का बेसिक वर्किंग एजेंडा क्या है. ए, इट प्रोहिबिट्स नेशंस who do not have nuclear weapons from acquiring them. For example, Philippines के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, बट अगर फिलीपींस एनपीटी साइन कर देता है तो इट मेक्स इट श्योर दैट Philippines is not going to acquire nuclear weapons even in future. Now same time पे it also prohibits जो nuclear states हैं, they won't help other states in acquiring nuclear weapons. For example, if अभी तक साइन नहीं करा है, बट इंडिया अगर एनपीटी साइन करता है तो इंडिया इज नॉट गोइंग टू हेल्प एनी अदर स्टेट इन अक्वायरिंग एनी सॉर्ट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स. सेम टाइम पे एनपीटी ऑल्सो एनविसेजेस टू वर्क टूवर्ड्स टोटल डिसआर्मामेंट. नाउ इसका वॉचडॉग कौन है, ये पूरा प्रोसेस देखता कौन है? द ऑफिशियल वॉचडॉग इज इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, which is a subsidiary of United Nations Commissions, and ultimately ये सारा कुछ फॉल करता है UNSC, जो आपका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, उसके अंडर. ठीक है, सेफ गार्ड सिस्टम बनाया गया है इसके अंदर. व्हाट इज द सेफ गार्ड सिस्टम? सेफ गार्ड सिस्टम है, इट इज गोइंग टू एस्टैब्लिश अ प्रॉपर रेजिमेन जिसके अंदर IAEA जो है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, which basically what it will do is it will verify the compliance जो होप का आपका थ्रू जो इंस्पेक्शंस होंगे, रेगुलर इंस्पेक्शंस which will be conducted by IAEA. बहुत प्रोमिनेंटली यू मस्ट बी हेयरिंग इट कि ईरान में ये जो आपके इंस्पेक्शंस हैं होते रहते हैं, ईरान पे सैंक्शंस भी लगे हैं, दे आर बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजंस ऑल टुगेदर, बट न्यूक्लियर एनरिचमेंट की बात वहां पे कॉन्टिन्यूसली चल रही है. ऑल्सो दिस ट्रीटी इट डिफाइंस न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स. न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स का डिस्टिंक्शन कैसे करा जा रहा है? द न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स आर डिफाइंड इन अ मैनर हु हैव बिल्ट and tested a nuclear weapon before 1967. ठीक है, तो ये पूरा कुछ एक यहाँ पे इन्होंने कैटेगरी रखी हुई है. Now NPT it falls under your 3 important pillars. पहला इंपॉर्टेंट पिलर क्या है? स्टेट्स पार्टीज जो है they will commit to general and complete disarmament. सेकेंड पिलर इज जो नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं आपकी, they will forgo development और acquiring nuclear weapons. एंड ये थर्ड पिलर इज जो स्टेट पार्टीज हैं, दे विल अल्टीमेटली दे कैन एक्सेस, सॉरी अबाउट दिस, दे कैन एक्सेस डेवलप न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी फॉर पीसफुल एप्लीकेशंस ओनली. मिलिट्री पर्पसेस के लिए नहीं होगा. इट इज ओनली गोइंग टू हैपन फॉर पीसफुल मिलिट्री पीसफुल एप्लीकेशंस. बेसिक एग्जांपल इसका क्या है? व्हेन यू नीड न्यूक्लियर मटीरियल, न्यूक्लियर enriched material for electricity production. This is one of the prime examples. ठीक है, welfare of the society, इसके लिए you will be provided. See, इंडिया रशिया के रिलेशंस इसलिए भी स्ट्रॉन्ग रहे हैं because when the whole world was against India, Russia provided the support of nuclear material and उसके अंडर हम अभी भी ग्रैंडफादर क्लॉज के अंदर रहते हैं. ठीक है, आई होप आपने IR में ग्रैंडफादर क्लॉज एंड इंडिया रशिया रिलेशंस में सारा कुछ पढ़ा होगा. नहीं पढ़ा तो प्लीज do read it because सारा कुछ interrelated है, and if you don't know one aspect of it, you could not be able to judge how things are moving ahead right now in present. Right now withdrawal की बात करें तो there are about 5 states who have never signed NPT या जो थी party but they have withdrawn from it. So India, Israel, South Sudan and Pakistan, they have never signed NPT, and North Korea ने 2006 में टेस्टिंग करी थी. सो दिस केम एज अ विदड्रॉल इन द पास्ट. राइट नाउ इंडिया ने साइन कर दिया, रिफ्यूज कर दिया साइन करने से, बिकॉज
एनपीटी के लिए कंप्लीट डिसआर्मामेंट की जो वर्ल्ड बात कर रहा है, फॉर दैट देयर नीड्स टू बी अ वेरी क्लियर कट आउट प्लान कि कैसे चीजें मूव फॉरवर्ड करेंगी. बट व्हाट इज हैपनिंग इज राइट नाउ जो न्यूक्लियर पावर स्टेट्स हैं, द 5 states, they have their nuclear arsenals, they are building it, they are improvising it, उसको upgrade कर रहे हैं. बट एट द सेम टाइम दे डू नॉट वॉन्ट कि दुनिया में और भी किसी के पास न्यूक्लियर पावर आर्सेनल हो. सो देर इज नो सच क्लैरिटी अबाउट इट कि हाउ थिंग्स आर गोइंग टू फंक्शंस. इंडिया इज पुशिंग फॉर कंप्लीट डिसआर्मामेंट कि हम तो डिसआर्म करेंगे ही करेंगे. इवन द 5 states they should dismantle and forego whatever arsenal they have. That is the point of contention right now which is holding up. ठीक है, इंडिया ने अभी तक जो अपना न्यूक्लियर वेपन का एक ऑफिशियल स्टैंड रखा है वो रखा है कि द प्रैक्टिस शुड बी नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, राइट. किसी भी जो भी स्टेट्स हैं जिनके पास भी न्यूक्लियर आर्सेनल है उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. इफ यू टॉक अबाउट इंडियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, तो मेंटेनिंग क्रेडिबल जो मिनिमम डिटरेंस है, दैट हैज बीन आवर फर्स्ट लाइन ऑफ एक्शन. वी आर नॉट गोइंग टू यूज इट फर्स्ट and we are not going to use our nuclear weapons against the states जिनके पास nuclear weapons नहीं है. Now the basic goal which India's nuclear doctrine holds is of universal non-discriminatory and verifiable nuclear disarmament. ऐसा नहीं है कि आपने कह दिया कि we do not have our nuclear weapons and it's done. It should be verifiable. Every state should be held accountable for whatever arsenal they have, right? Now India also supported एक immediate commencement हुआ था negotiations का in conference on disarmament CD which was proposed by your George W. Bush the junior in 2006. He proposed it and उस time पे this was a very big hype. It was सेड दैट कि शायद एनपीटी का सोल्यूशन निकल आए जो एक डेडलॉक बना हुआ है. बट मेजरली इफ यू सी इट इन द हाइंडसाइड तो ये चीज यहाँ पे रुकी हुई है. देयर इज नो पर्टिकुलर सोल्यूशन टू इट. नाउ ट्रीटी उस टाइम पे इन्होंने एक एक्स्ट्रा ट्रीटी फ्रेम करी, अलग से ट्रीटी फ्रेम करी जिसका नाम इन्होंने रखा fissile material cut-off treaty. Fissile material is your material which is used in your nuclear reactors. Now अगर fissile material cut-off treaty की बात करो तो it is an proposed international agreement that would prohibit जो आपका production है of the two main components. Two main components कौन से आते आपके आते हैं? HEU highly enriched uranium and plutonium. दोनों जो use होते हैं आपके nuclear reactors also atomic bombs में. Now discussions जो है that have happened, ठीक है, continuously discussions have happened, but यहाँ पे कोई negotiation के बाद भी we couldn't reach any proper solution. Now जो आपका ये CD है it operates by consensus and since यहाँ पे consensus नहीं आ पाया है तो it has been a stagnant organization for a very very long time. What it basically demands is जो नेशंस जिन्होंने एनपीटी ज्वाइन कर लिया है एज नॉन वेपन स्टेट्स, दे आर तो ऑलरेडी प्रोहिबिटेड कि आप ना वेपन्स प्रोड्यूस करोगे ना आप अक्वायर करोगे फिसल मटेरियल फॉर वेपन्स. लेकिन जो आपकी फिसल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी है दिस वुड ऑल्सो प्रोवाइड न्यू रिस्ट्रिक्शंस फॉर बोथ पेयर्स. एक तो जो न्यूक्लियर पावर्स हैं उनके लिए द 5 countries, also the countries who have not signed NPT yet, that is your Israel, India, South Sudan, Pakistan and North Korea. ठीक है, it was said it would work but अभी तक इसका कोई आप देखो तो proper solution निकल के आया नहीं है. इंडिया क्या कहता है? इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? सी देर इज अ वेरी ब्यूटिफुल मूवी अबाउट दिस होल न्यूक्लियर रिएक्टर टेस्टिंग थिंग. किसी ने देखी हो तो परमाणु करके, सो पोखरन में द टेस्ट एंड एवरीथिंग. जॉन अब्राहम वाज the lead in that movie, so it shows how hard India has struggled and how much pressure US was putting on India about the whole not testing the atomic bomb thing, but somehow India emerged victorious. So that is something to be proud of. It was a tough task to achieve at that particular point of time जब India बहुत सारे recession से निकल रहा था, but ठीक है, इट्स अ कमेंडेबल अचीवमेंट. नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? नाउ आफ्टर मैथ ऑफ कोल्ड वॉर में व्हाट यूएस रियलाइज्ड वाज इंडिया का इंक्लिनेशन इज टुवर्ड्स रशिया. ठीक है,
being socialistic, and Russia always provided help. Now US को दो चीजें करनी थी. A, they did not want India to be allies with Russia. दूसरा, they wanted to keep in check the power grab of India in this particular region. ठीक है. So particularly for this, what they started doing, they started putting pressure on New Delhi that आप अपना nuclear arsenal, atomic arsenal आप develop नहीं करोगे. ठीक है. Now India played it really smart. हमने diplomatic strategy अपनी निकाली, and after a lot of tests in May 1998, इंडिया का जो फोकस है it shifted from जो consequences हमने अपने ऊपर ले लिए थे. टेस्टिंग हो गई, इट वॉज सक्सेसफुल, एवरीवन न्यू इंडिया हैज न्यूक्लियर आर्म्स नाउ, राइट. तो 1998 के बाद जो कॉन्सिक्वेंसेज हुए अब उनको झेलने की बारी आई. इंडिया के ऊपर भी सैंक्शंस लगे, थिंग्स फॉलोड, आपने आईआर में पढ़ा होगा. नाउ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसके बाद किसको हुई? द मोस्ट प्रॉब्लमैटिक वॉज पाकिस्तान, एंड बिकॉज यूएस का जो इंटरवेंशन रहा है इंडिया में, दैट हैज बिन थ्रू द माइक्रोस्कोप ऑफ पाकिस्तान. तो पाकिस्तान एंड यूएस दे सॉर्ट ऑफ बिकेम वेरी क्लोज इस पूरे केस सिनारियो में. नाउ इंडिया ने एक हिस्टोरिक इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर इनिशिएटिव साइन करा, जिसको मनमोहन सिंह गवर्नमेंट की एक काफी बड़ी अचीवमेंट माना जाता है. नाउ दिस फाइनली प्रोड्यूस्ड अ फ्रेमवर्क जिसमें इंडिया के ऊपर जो एक्सटेंडेड कॉन्फ्लिक्ट है विद द वर्ल्ड पावर्स, उसको एक फुल स्टॉप लगा कि इंडिया इज गोइंग टू ओनली यूज जो भी इसके पास न्यूक्लियर फिसल मटेरियल है ओनली फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट इंडिया इज गोइंग टू रिफ्रेन फ्रॉम अटैकिंग फर्स्ट. तो इंडिया की जो पॉलिसी है उसके ऊपर एक पूरा फ्रेमवर्क मिला. ठीक है. देन सेपरेशन ऑफ इंडिया का जो सिविल एंड मिलिट्री न्यूक्लियर प्रोग्राम्स है, दैट वाज एट द हार्ट ऑफ द ट्रीटी. ठीक है. वो एक बहुत प्रोमिनेंट पॉइंट यहाँ से निकल के आया. नाउ अगेन इंडिया यूएस की जो डील हुई, a few years later it again gave New Delhi a freedom because India stuck to its word. ठीक है. हमने कहा था कि हम इसका पार ग्रैब के लिए, टेरिटोरियल एक्सपेंशन के लिए यूज नहीं करेंगे. सो इंडिया स्टक टू दैट पॉइंट एंड दिस एक्चुअली गेव न्यू दिल्ली अ फ्रीडम. ठीक है. जब आपकी क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश हो जाती है तो यू कैन एक्चुअली डू स्टफ. ठीक है. नाउ हमने, बिकॉज हमारी क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश हो गई थी, इट गेव न्यू दिल्ली ऑफ फ्रीडम, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ फ्रीडम, कि हम अपना जो सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन है जिसपे एक फुल स्टॉप लगा हुआ था सिंस मई 1974, उसको हम आगे बढ़ाएं. ठीक है. इंडिया ने कॉन्टिन्यूसली अपोज करा है इंटरनेशनल बॉडीज का नॉन प्रोलिफरेशन की तरफ, जो उनका पुश है उसको, बिकॉज ये इंडिया का पॉइंट ये है कि वाई इज, जो एनपीटी का स्टैंड है कि आप न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट करोगे, वाई इज इट सिलेक्टिव. जो वो 5 पार्स हैं वो अपने न्यूक्लियर आर्मेंट्स क्यों डिसमेंटल नहीं कर रहे हैं? वाई डू दे वांट टू कीप इट विद देम, एंड बाकी सारा दुनिया जितनी है, बाकी सारी दुनिया की जितनी कंट्रीज हैं, दे आर आस्किंग देम टू गो नॉन न्यूक्लियर. ठीक है. तो ये एक बेसिकली प्रॉब्लम जो है इंडिया की, इंडिया हैज पुट फॉरवर्ड इट्स पॉइंट, एंड जो बाकी की सारी कंट्रीज हैं दे हैव बिन अग्रीइंग विद जो वर्ल्ड स्टेट्स हैं उससे. रोहित, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ एनपीटी? आई विल टेल यू. ठीक है. सी इंडिया, अगर आप देखो ना, इंडिया हैज कम एज वन ऑफ द ग्लोबल लीडर्स. तो इंडिया इज इन दिस पोजिशन, इंडिया बिकॉज किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, सो इंडिया इज इन पोजिशन टू आर्ग्यू कि हम तो साइन नहीं करेंगे. बट अगर आप जब उस टाइम पे देखो, जब न्यूक्लियर ट्रीटी साइन नहीं हुई थी, ठीक है, उस टाइम पे अगर आप देखो एनपीटी जब नहीं थी, तो देयर वर अबाउट 25 नेशन स्टेट्स जिनके पास न्यूक्लियर आर्सेनल उस टाइम पे था. लेकिन आफ्टर द एनपीटी केम इनटू एग्जिस्टेंस, आप ये देखो 191 स्टेट्स हैव साइंड इट. सो दिस मेक्स इट श्योर, ठीक है, एटलीस्ट इंटेंट दिखाता है कि we are not willing to go on nuclear wars. And now at present there are only 10 states left जिनके पास न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं. तो उस टाइम पे 25 थे, एंड आज की डेट में अगर वो 10 रह गए हैं, तो दिस शोज प्रोग्रेस. तो ऐसा नहीं है कि एनपीटी का इम्पैक्ट नहीं है, एनपीटी का इम्पैक्ट है. देयर आर एन नंबर ऑफ लूप होल्स दैट नीड टू बी फिक्स्ड. लेकिन
See, you have to understand the whole world is sitting on the pile of nuclear reactors. एक बार ये शुरू हो गया, there is no stop to it. And mass destruction, पूरी दुनिया का खात्मा कोई नहीं चाहता. Everyone wants to survive. So अभी it is more about part असल कि मेरे पास पार रहनी चाहिए, दूसरे के पास नहीं रहनी चाहिए. India is trying to find a midway out उनके बीच में से. ठीक है. नाउ मेन स्पॉन्सर्स जो थे एनपीटी के बैक इन 1970 देवर अमेरिका एंड रशिया. इनके बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था. ठीक है. यूएस एंड यूएसएसआर. नाउ इसके बाद अगर आप देखो हाउ थिंग्स ऑफ प्रोग्रेस, बहुत ज्यादा ना फोर फ्रंट रनर में एक प्रॉपर इसका मेथड डेवलप नहीं हुआ है. देन फॉलोड रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट. आई ऑलरेडी शोड यू ऑन द मैप कि कहाँ पे इसका न्यूक्लियर रिएक्टर है. ठीक है. तो उसकी वजह से रेपरकशंस अलग आ रहे हैं. नाउ चाइना का अगर आप देखो टेरिटोरियल एक्सपेंशन, ऐसी कोई कंट्री नहीं है चाइना के नेबरहुड में इस टाइम पे जहां पे चाइना ने इलीगली उनकी जमीन नहीं दबाई है. राइट. सो चाइना हैज बिन एक्सपैंडिंग इट्स बाउंड्री नॉट जस्ट ऑन लैंड, not just territorially on land but also its maritime boundaries, whether it is आपका साउथ चाइना सी में जा रहा है, whether आपका पाकिस्तान के साथ लग रहा है, whether इंडिया के साथ लग रहा है. ठीक है. सो चाइना की जो पॉलिसी है दैट हैज बिन वेरी एग्रेसिव एंड उसके ऊपर कंट्रोल लगाने के लिए कोई वर्क नहीं कर रहा है, जबकि चाइना इज ऑल्सो सिटिंग ऑन द पार ऑफ सिटिंग ऑन द पाइल ऑफ न्यूक्लियर आर्सेनल एंड इट हैज कॉन्टिन्यूसली बीन अपग्रेडिंग इट. साइड बाय साइड नॉर्थ कोरिया हैज गॉन रोग. नॉर्थ कोरिया का किम जोंग यूंग का आई गेस एवरीवन नोस कि क्या हो रहा है. एंड बैक चैनल से इट हैज बीन स्पेक्यूलेटेड that China has been helping out North Korea as well, which goes against again the major policy of the world peace. तो बहुत सारे अगर आप देखो there have been parallel issues that have been mushrooming and which needs to be addressed, right? Okay, Rohit, I hope the point is clear कि इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस. ऐसा नहीं है कि एनपीटी आ गया तो आपने प्रॉब्लम्स जो थी उनको सॉल्व कर दिया. इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस. इसीलिए बोला जा रहा है इट नीड्स टू बी फिक्स्ड. आपका क्वेश्चन इसीलिए कहा जा रहा है कि इट इज शेकी, आपको एक्सप्लेन करना है व्हाई. ठीक है. नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक अगेन, न्यूक्लियर पावर अगर आप देखो इट इज कमिंग बैक अगेन इन द रेकनिंग. एंड अगर आप ऑकस की बात करो, ऑकस इज द मेजर ग्रुपिंग दैट हैज बीन फॉर्म्ड. आईआर में आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा प्लीज ब्रश इट अप. ठीक है. Similarly, now right now we are not just fighting with nuclear change. There are n number of states, maritime states, ठीक है, island countries जो अपने existence के लिए इस time they are fighting. तो जब climate change की deal इतनी बड़ी है, ठीक है, there are many island states जो next 50 years में शायद exist करना बंद कर दें because the ocean level is rising. So इस time पे we cannot afford कि हम multiple fronts पे लड़ाइयाँ लड़ें. So these are the present challenges जो अभी NPT के सामने है and which needs to be discussed. Now इस पूरी NPT के कॉन्स क्या क्या थे. 5 नेशंस जो हैं जिनके पास न्यूक्लियर पावर्स हैं उनको कोई अकाउंटेबल ठहरा ही नहीं रहा है. ठीक है. नाउ इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स तब भी थे जब NPT साइन हुई थी एंड इन 50 ईयर्स इन्होंने कुछ भी नहीं करा है कि अपना न्यूक्लियर वेपन आर्सेनल को हम कम करें, उल्टा इसको अपग्रेड करें. दूसरा मेजर लूप होल यहां से आता है एनफोर्समेंट का. डिस्पाइट द थ्रेट ऑफ इकोनॉमिक सैंक्शंस, जितने भी आप देखो, नॉर्थ कोरिया ने ऑलरेडी 2006 में अपना न्यूक्लियर वेपन टेस्ट कर लिया था बिकॉज नॉर्थ कोरिया हैज गॉन रोग. एंड जो ईरान है दैट इज फॉलोइंग द सेम सूट. ईरान के ऊपर कॉन्टिन्यूस सैंक्शंस लग रहे हैं. P5 का अलग प्रेशर है. IAEA कॉन्टिन्यूसली, जो इनका नटान्स का न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ठीक है, वो कॉन्टिन्यूसली न्यूज में रहता है. आई एम प्रिटी श्योर आप लोगों ने सुना होगा. देन देयर आर एन नंबर ऑफ लूप होल्स इसमें से निकल के जो आ रहे हैं जिनको कोई एड्रेस नहीं कर रहा है. ठीक है. तो ये वाली चीजें थोड़ी सी ध्यान में रखने वाली हैं. नाउ जब ये न्यूक्लियर ट्रीटी साइन हुई थी, इट वाज, जो क्वेश्चन आपका था, उस टाइम पे अराउंड 25 नेशंस ने ये ट्रीटी साइन करी हुई थी, बट आज की डेट में सिर्फ 9 नेशंस के पास है. तो दिस इज सीन एट प्रोग्रेस. बट हम यहाँ पे सिर्फ रुक नहीं सकते हैं कि आगे ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो. नाउ देयर आर कपल ऑफ अदर इश्यूज जो निकल के आते हैं. नाउ नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स जो हैं वो ये बोलती हैं कि ये पूरा प्रोसेस डिस्क्रिमिनेटरी है मल्टीपल लेवल्स पे. क्या? पहला तो इट फोकसेस ऑन प्रिवेंटिंग ओनली आपका हॉरिजॉन्टल प्लोरिफरेशन है जो वो, एंड देयर इज नो लिमिट ऑन द वर्टिकल प्लोरिफरेशन.
अब दोनों में डिफरेंस क्या है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट। ऑल्सो जो नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं, दे से दैट जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं दे शुड रनाउंस देयर आर्सेनल्स एंड फर्दर जो प्रोडक्शन है उसको स्टॉप करके देयर कमिटमेंट शुड बी शोन टुवर्ड्स नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स। नाउ वर्टिकल प्रोलिफरेशन क्या कहता है आपका, दिस इज द एडवांसमेंट और मॉडर्नाइजेशन ऑफ अ नेशन स्टेट्स न्यूक्लियर आर्सेनल, वेयर एज जो आपकी हॉरिजॉन्टल प्रोलिफरेशन है, ठीक है, यहाँ पे आप मॉडर्नाइज करोगे आपका ऑलरेडी प्रेजेंट जो न्यूक्लियर आर्सेनल है उसको, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल है इसका मतलब है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजीज फ्रॉम वन नेशन स्टेट टू अनदर, ठीक है। तो मोर एडवांस डेवलपमेंट जो है यहाँ पे उसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं करा जा रहा है। नाउ एज देयर इज नो एक्सप्लिसिट ऑब्लिगेशन, यहाँ पे ऑब्लिगेशन की बात नहीं हो रही है टू रिड्यूस द आर्सेनल, जो आपका NWS है, नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स है, दे हैव कंटिन्यूड टू एक्सपैंड देयर आर्सेनल्स विदाउट एनी कंस्ट्रेंट्स पुट टुगेदर। नाउ नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स जो हैं उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन कहाँ और लगा हुआ है, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस आर आल्सो पुट व्हेन इट कम्स टू पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, जैसे कि आपका परफेक्ट एग्जांपल जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का, ठीक है। पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजंस की अगर आप बात करो तो यूएस ने प्रोहिबिट करा हुआ है कि आप पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजंस जो है राइट्स को उनको आप प्रोहिबिट करोगे एंड जो भी आपको टेक्नोलॉजी चाहिए वो यूएस आपको प्रोवाइड करेगा ऑन कमर्शियल बेसिस। तो यूएस एक तरफ तो दूसरा आपकी पार को बढ़ने से रोक रहा है, दूसरा दे आर हैम्परिंग योर प्रोग्रेस, थर्ड दे आर एडिंग टू देयर फॉरेक्स रिजर्व्स। कैसे? बिकॉज वो आपको जब कमर्शियल सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो आप रिटर्न में उनको मनी दोगे, तो अल्टीमेटली देयर करेंसी इज गोइंग टू गेट स्ट्रॉन्गर। सो यहाँ पे दे आर नॉट ओनली विनिंग द पार गेम बट दे आर ऑल्सो विनिंग द इकोनॉमिक गेम, ठीक है। तो इट इज अ मल्टी प्रोंग स्ट्रैटेजी जो यूएस ने अडॉप्ट करी हुई है एंड नॉट जस्ट यूरोप, जितनी आपकी 5 कंट्रीज है इन सब ने ये स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करी हुई है। इंडिया का स्टैंड जो रहा है, इंडिया ने बड़े स्पेसिफिक टर्म्स यूज करे हैं व्हेन इट कम्स टू एनपीटी। क्या क्या है? दिस इज कमर्शियल सुपर मोनोपोली, जो इंडिया यूज करता है इन 5 स्टेट्स के लिए, ठीक है, कमर्शियल सुपर मोनोपोली, ठीक है। एटॉमिक अपार्थाइड एंड ये जो आपकी इंसिस्टेड पीएनई राइट्स हैं, दे नीड टू बी इनकलकेटेड फॉर द पीसफुल यूजेस ऑफ न्यूक्लियर जो आपके मटेरियल्स हैं उनके लिए। नाउ इंडिया ने डिस्पाइट जितने भी रिस्ट्रिक्शंस हैं अपना पहला पीएनई कंडक्ट करा था इन 1974, ऑपोजिशन टू ये आपका जो डिस्क्रिमिनेटरी प्रिंसिपल था जब इंडिया की हेल्प करी थी रशिया ने, जहां से आता है आपका ग्रैंडफादर क्लॉज, ठीक है। सो दिस इज हाउ एनपीटी हैज इवॉल्व्ड, ठीक है। अगर आप इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो हाउ इंडिया कैन प्रोसीड, सो हमारा जो सिविल न्यूक्लियर लायबिलिटी एक्ट है 2010 का, इट नीड्स टू बी अपग्रेडेड, उसको रिफाइनमेंट की जरूरत है। देयर आर एन नंबर ऑफ लूप होल्स या अपग्रेडेशंस है, तो इंडिया नीड्स टू रिविजिट इट। ऑल्सो इंडिया नीड्स टू रिकॉग्नाइज एंड अडैप्ट टू न्यूक्लियर वेपन्स। सी, चाइना ऑलरेडी एक्सपैंड कर रहा है, चाइना अपनी कैपेसिटी पे कहीं रोक नहीं लगा रहा है। एंड कंसिडरिंग व्हाट हैज हैपेंड इन रशिया एंड यूक्रेन, जब यूएस ने वहां इंटरवीन नहीं करा, if some problem breaks out between India and China, how can we expect कि UN या और European nations और US will intervene here? So India needs to upgrade its military and both civil nuclear capabilities accordingly because it is more about self-preservation rather than being offensive, ठीक है। अभी हमें अपने आप को डिफेंड करने के लिए भी अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने की बहुत जरूरत है। नाउ इंडिया को बहुत ज्यादा अटेंशन देने की जरूरत है इस टाइम पे कि हाउ अदर कंट्रीज आर रिएक्टिंग एंड जो अपनी इंटरनेशनल पॉलिसी है अकॉर्डिंगली फ्रेम करने की जरूरत है। ईरान के ऊपर सैंक्शंस लग गए हैं बट इंडिया हैज पुट इन अ वेरी राइट मैनर कि हमारे ईरान के साथ जो रिलेशंस हैं, बायलेटरल रिलेशंस हैं, दे हैव बीन गुड। सिमिलरली इफ यू सी, नॉर्थ कोरिया इस टाइम किसी से बात नहीं कर रहा है एक्सेप्ट चाइना। सो नॉर्थ कोरिया हैज kept its door open both for China and Russia, but North Korea is in direct conflict with US. So आपको bilateral diplomacy नहीं, multilateral diplomacy पे इस बार देखना पड़ेगा। Also India needs to strategize कि हमारे future venues क्या हैं and how we can benefit from there,
ठीक है, तो अकॉर्डिंगली जितनी भी हमारी फ्यूचर की स्ट्रीम्स हैं हमें वो प्लान करनी पड़ेंगी. दिस कंक्लूड्स योर टॉपिक फॉर एनपीटी. आई होप जितना हमने डिस्कस करा आपको क्लियर होगा एंड यू मस्ट हैव लाइक्ड द होल डिस्कशन. It's a very complex thing. You have to know a lot of things in the history, how they have evolved from world history to IR. अगर आपके वो components पूरे हो गए हैं तो you must have enjoyed it. Please write your answer and we'll evaluate it, and we'll meet again on Monday with your session of polity and governance. Till then, stay tuned and keep learning, keep watching. Thank you so much. Bye bye.